अभी एआई जो है वो 100% आंसर नहीं देता आपको। देखो चैट जीपीटी अपीयर्स वेरी कॉन्फिडेंट बट डजंट मीन इट्स करेक्ट। It is giving an answer which is somewhere between 40 to 60, 40 to maybe 70%. तो लगता है ऐसा है कि वो 200% है, ठीक है। अब नेचर ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट अ गिवन, दैट मे कीप ऑन चेंजिंग, बट व्हाट इज दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस which allows you to tackle any problem? That is structured problem solving, और वो बच्चों को स्कूल में सिखाना जरूरी है। This personalization is a very big force. अभी तक हमारी एक ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन ये है स्केल, हर चीज स्केल पे करो। स्केल मेंट स्टैंडर्डाइजेशन, यूनिफॉर्मिटी। हेनरी फोर्ड जी ने बड़े उन्होंने बोला यू कैन हैव एनी कलर कार एज लॉन्ग एज इट इज द कलर ब्लैक। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मोटो है। मैं फिडेलिटी का सीईओ था इंडिया में, और मैं ग्लोबली ट्रांसफॉर्मेशन हेड करता था कि वहाँ पे फिडेलिटी के ऑफिस में जाए, कैमराज लगे हुए हैं और वो कस्टमर को ऑब्जर्व करते हैं। बाय द टाइम यू कम टू एडवाइजर, और ये तो वेल्थ एडवाइजर है ना, आपका मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पोर्टफोलियो, उसको सेंस हो जाता है कि आप किस मूड में आए हैं। आप अच्छे मूड में आए हैं तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अब खराब मूड में आए तो याद बेचना नहीं है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो इस समय दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत अक्लमंद बेवकूफ़ हैं, कि दे आर ट्राइंग टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स यूजिंग फाउंडेशनल मॉडल्स। जो आप एक थोड़ा कॉमन सेंस प्रैक्टिकली सोचो तो वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, isn't it? कि अब मैं पूरा समुद्र मंथन करूंगा, एक अंग्रेजी में बोलते हैं ना बॉइलिंग द ओशन, बॉइलिंग द ओशन, और मेरे को निकालना है एक चवन्नी, और उसके लिए मैंने कर दिया बॉयल द ओशन की पूरी दुनिया का मैंने डेटा को चर्न कर दिया। पूरी दुनिया का डेटा को चर्न करने के लिए कितना कंप्यूट लगता है, कितनी एनर्जी लगती है, कितना डेटा सेंटर बनाने पड़ेंगे, कितना पेड़ काटने पड़ेंगे, isn't it? Very good evening to all of you, and thanks a lot for being present here on Friday evening for this particular discussion. The person who's sitting in front of me needs no introduction. We have Mr. Nitin Seth, and presently he's leading an organization named as Incedo, based out of the US, which works on digital transformation. And prior to that, he has an illustrious career in the corporate sector, which needs no introduction, and a lot of people have talked about it earlier as well. Today, we are here to discuss about a very interesting subject. We all keep talking about AI very often, and there is a lot of conversation and buzz around how AI is probably going to transform the world and learning and so many other aspects of human life. But there is very less discussion on what we as human beings need to do in order to keep up with the challenges that AI poses to us. And interestingly, Nitin has recently written among his bestsellers another book which is titled as The Human Edge in the AI Age. For those of you who are interested in not just knowing about how we keep up with the challenges that the AI age poses to us, but generally in order to develop as a better human being and a thinker and a problem solver, I would highly recommend this book to all of you. I read this book over the last 3 weeks, and I had a ball reading this book because there are so many practical suggestions that have been written by Nitin in this particular book that I would find it very difficult to kind of summarize it in a few words. So we'll be starting with a few questions put up to Nitin, and then after that we can start taking questions from the audience as well. So please feel free to ask questions, but please keep the questions as brief as possible so that we can have more time for interaction with Nitin. So thank you so much, Nitin, for taking out time for interacting with us. And I'll start with the title of the book itself, which is The Human Edge in the AI Age. What do you exactly mean by this human edge, and how do human beings actually keep up that edge over the technology
as things around us go more and more chaotic with the evolution of artificial intelligence and other technologies. Yeah, no, thanks, Jatin, and very happy to be here. So, see, I work at the intersection of business and technology, and my first two books were on these topics, digital and data. So it was somewhat obvious that my third will be on AI. But as I began to think about I realized that this was no ordinary technology change. This was a very, very fundamental uh, movement for us in our evolution as a species. Okay, I say that with you know these are very big words, yeah, but I really mean them. If we have to compare AI with something, we have to compare it with fire or wheel or electricity. It is that order of magnitude. This is a very, very big shift. What is happening with AI is that AI is now becoming more human than humans. So, what has happened over the last couple of years is that there has been an explosion in data. There has been an explosion in data of a magnitude that you can't perhaps visualize. That data has exploded over the last 20 years 1 lakh times. Okay? 1 lakh times. Okay? So, to put it in a different way, 90% of the data of the world has got generated over the last 2 to 3 years. So there is an explosion that has happened. This explosion is what has fueled AI to a very different level. Now, AI has been around for 30, 40 years. The algorithms were there, but we did not have the data where AI could really be used. Now, over the last 2, 3 years, there has been this data explosion, and then many companies like OpenAI, you would have heard of ChatGPT. OpenAI is the company behind that, but not just them, Google and many others build these huge models, transformer models, which sucked up literally the data of the world. The data of the world, okay? उन्होंने पूरे इंटरनेट डेटा को उठा के उसको अब्जॉर्ब कर लिया. And that has allowed this, what we call generative AI. This generative AI came to the fore, which has a very different capability. Very different capability. So many, many things which we always thought was very innately human. Not just problem solving, but even creativity. Yeah. Or even emotional intelligence or empathy. Now machines are doing. Very significant part of movie making is now driven by AI. You have entire movies made end to end by AI. My last trip to India, I had a lot of conversations with leading lights from Bollywood. Ashutosh Gowarikar, who has made Lagan, Mohit Suri has made this movie Sayyara. And then I met Anand Nilekantan, who's the screenwriter of Bahubali. I thought इनको AI के बारे में क्या पता होगा? And they were all using AI very intensively. Okay? And it's fascinating how much it has come in the creative process. Empathy. There have been a lot of studies, with online nursing support. Yeah? Human versus AI. 9 times out of 10, AI is showing more empathy. Okay, so you see where I'm trying to go, that I saw that AI is really becoming more human. Okay, and as I began to see that in numbers, the impact was, Jatin, really quite remarkable. I saw that over the next 15 years, 35%, 35 to 50% of all jobs will go. You know what is that number? That is 1.8 billion jobs. Can you imagine? 1.8 billion jobs. And that really kind of then triggered this entire thought process that as a humanity, we are seeing
there is a crisis of an unimaginable proportion. We can talk about geopolitics, we can talk about climate change, we can talk about terrorism, we can talk about a lot of things. But this we will not survive. If 2 billion people on the planet lose jobs, we will not survive that. Yeah. And then the question was that, is that it? Is that it? Hum haar maan le? Yeah. I think the one thing humans have is that we are very adaptive. We don't give up. There were many Homo species. There were many competing species. We won the race, right? There's a reason, because we are very adaptive and resilient, and it's a question. Now that's a question. And so what is the answer? So one of the things that came out for me is that with this AI, every industry is also going to disrupt. Okay, every industry is also going to disrupt, and that will create hundreds of thousands of new opportunities. Those are opportunities for entrepreneurs, because large companies may not be able to access those opportunities. And if we take that as a frame, that AI age is going to signal the end of the era of jobs, but it is also going to signal a new era of entrepreneurs. Once we take that, and that is a way forward, then a lot of things start to fall into place. What is it that you need to do for that? Yeah, that you need to go back to that pioneering and adventurous and risk-taking spirit of the early man. Okay, so that is where my thought process really started from. And as I delved deeper, Jatin, what I think became very clear to me, and which is very interesting and paradoxical, that to really not just survive but thrive in this age of AI, what is important is not our technical skills. Now, AI seems like technology, and you say, okay, मैं इसमें कंप्यूटर साइंस पढ़ूंगा और यहाँ कुछ AI का मैं पढ़ूंगा तो उससे निवारण हो जाएगा. ऐसा नहीं है. That is not the way out. It is paradoxically becoming more human, going back to the core human timeless skills that we have always had. Risk-taking, empathy, creativity, problem solving, spirituality. Maybe we'll talk more about that in the conversation. It is going back to that core human skills, which is the way out. Yeah. So that is the whole concept of the human edge in the AI age, that to survive and to thrive in the AI age, हाँ भाई technology को master करना है, but technology is really progressing, and if we have to compete, and compete is not a right word, for us to move forward, we have to focus a lot more on our core human capabilities, core human essence. And you've brought in lessons from the world of sports, because when you're talking about resilience, it took me to one of the chapters where you talk about India's win in 2021 in Australia, where we were pushed against the wall, 36 all out, and the captain has flown back home. You have a second string side, you don't have fast bowlers, and then you're competing against one of the best sides in the world, that too at their fortress at the Gabba. And then we were able to overcome that. And you talked about resilience and teamwork and a number of other qualities that make us human and give us that edge over the technology. So could you explain a bit more about what, in your opinion, would be 5 or 4 qualities which a person in the 21st century needs to have to be able to sustain in this competitive age, and how things are going around with the help of technology? Sure. वैसे तो मैंने पूरा फ्रेमवर्क बनाया है, पॉसिबल उस पर फिर बात करेंगे, बट मे बी टू सिंप्लीफाई 5, आपने 5 बोला तो मैं 8 पे नहीं जाऊंगा. So 5 C's, just to make it easy, because I love frameworks. तो मैं 5 C की बात करूंगा. पहला है context. Okay. In the age of AI, this word called context becomes very important. Because see, अभी AI जो है वो 100% आंसर नहीं देता आपको. देखो, ChatGPT appears very confident,
but doesn't mean it's correct. It is giving an answer which is somewhere between 40 to 60, 40 to maybe 70%. लगता है ऐसा है कि वो 200% है, ठीक है. So that gap between, and as you get into more complicated, ChatGPT तो एक खिलौने की तरह है, ठीक है. As you get into commercial applications, जैसे banks or telecom companies or healthcare companies, the kind of big companies that I work with, भाई उसमें तो you can't work at 40-60%. वो तो किसी की लाइफ का सवाल है. So the gap between 100% और 95%, मानो 100% किसी भी चीज में आप नहीं हो पाते हो, 95%, and what AI is giving you, that gap is context. That gap is context. Because while AI is able to deal with a lot of situations, but still, if you look at the human mind and human decision making, it's very complicated. Context plays a very big role. Yeah. So in the short to medium term, Jatin, the real human edge is context. एक प्रैक्टिकल तरीके से जो इतना ऑटोमेशन हो रहा है एंड उससे जॉब लॉस भी हो रहा है, व्हाट इज द जॉब दैट इज लेफ्ट? अगर अभी 100% ह्यूमन था और मशीन ने 60% भी कर लिया, तो भाई उतना तो कम हुआ ना. तो जो बचा वो क्या है? वो कॉन्टेक्स्ट है. एंड इट इज द पर्सन हु ब्रिंग्स कॉन्टेक्स्ट. और कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो टिपिकली इट कम्स फ्रॉम नोइंग समथिंग अबाउट समथिंग, नोइंग अबाउट द डोमेन. अगर वो बैंकिंग है, आपको बैंकिंग जो प्रोसेस उसके बारे में अच्छी तरह बहुत डीपली पता है, या वो हेल्थ केयर है, या वो एग्रीकल्चर है, या वो एजुकेशन है, पहला वर्ड है कॉन्टेक्स्ट. दूसरा है क्रिएटिविटी. While again we spoke about machines playing a role in that creative process, but still creativity is a very human thing. और एक machines make it easy, but जो final जो cutting एक जो edge है वो शायद एक human creativity से आता है. और pure human creativity और machine creativity में भी एक अंतर अब visible है. और जो एक ह्यूमन क्रिएटिविटी है उसकी वैल्यू और भी ज्यादा रहेगी. या वो दूसरा सी है. तीसरा सी है कनेक्शन, विच इज द ह्यूमन कनेक्शन. हम आपस में बैठे हैं अभी, आप मेरी किताब पढ़ लें, ठीक है, आपको किताब पढ़ के शायद अच्छा लगा, ठीक है, बट जो हम एक बारी बात करेंगे और उससे जो एक कनेक्शन से जो एक आइडिया स्प्रिंग करेंगे और जो एक अंडरस्टैंडिंग जाएगी, वो बहुत अलग है, isn't it? So in a very paradoxical way, we are in a virtual world, isn't it? Digital, data, AI. But इस virtual दुनिया में the value of the human connection is even higher. जो context भी आता है और जो creativity भी आती है, वो भी connection से ही आती है. सिर्फ गुफा में बैठ के creativity नहीं आ जाती इतनी ज़्यादा. Isn't it? So that's the third thing, connection. And then with that, the skill of how do you build those relationships. Right. Isn't it? चौथा C जो है वो है care. Okay. And that is something we are very different from machines. Okay. हम वैसे सोचते हैं कि ये बहुत self-centered दुनिया होती जा रही है, but still somewhere we care, somewhere we have this thing about making a positive difference. That is how we are different from machines. And absolutely, in this world of AI, it becomes even more important, this quality of care. And the fifth C is courage. Because it's going to be a brave new world. ये एक बहुत important topic है. I'm sure a lot of you are students of history. That the world that has got created over the last 200-300 years, the post-industrial revolution world, is going to get very rapidly deconstructed over the next 20 years. There's going to be a whole lot of churn. Amazing amount of churn, every industry, every area, including government, governance,
education, core pillars, not just industry. There is going to be dramatic level of churn, of change, और उसमें navigate करने के लिए उसमें build करना है, rebuild करना है, अलग तरीके से सोचना है, उसमें courage बहुत important है. अगर courage नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे. Yeah. So those are the 5 C's. Number 1 is context. 100% minus AI is equal to context. And that is in the short term, that's the human edge. Number 2 is creativity. Number 3 is connection. Number 4 is care. Number 5 is courage. That was really helpful. I think the 5 C's will stay with me as well. And I think unless the courage is there, the first 4 are actually useless in many ways, because if you don't have the guts to actually go and experiment, the other 4 don't really work. So thank you so much for putting light on that. Another, I think, area which kind of concerns, I was reading that how the government is planning to bring in AI now in the K-12 segment in the schools as well, and possibly make it compulsory. You have written about the Finland experiment of how they have moved on from a very subject-based learning to phenomenon-based learning, instead of knowledge accumulation to move towards concept-based learning. How do you think we can incorporate the same aspects in Indian education, and if you see any challenges with respect to that? And how important is that in the first place? It is extraordinarily important. See, देखिए, this big move, the big shift from jobs to entrepreneurship requires a very fundamental shift in our education process. Process at many levels, also very fundamentally in parenting. Yeah. So, but education की पहले बात करते हैं, because whether it is school or undergraduate or postgraduate studies, वो finally तो job के लिए ही anchored है. अब आप बोल रहे हैं कि दुनिया में 50% जॉब कम हो जाएंगी और जो अपॉर्चुनिटी है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, तो both the nature, the content and the pedagogy both need to change. Let's first talk about content. What skills are going to be important. हमने थोड़ा तो already बात कर ली है, Right. but जो main मुद्दे की बात है, that it is going to move from the technical skills to the more foundational skills. जैसे आपने भी फिनलैंड की बात करी, because see what is happening, the half life of technical skills is becoming very short. अगर कोई यहाँ पे कंप्यूटर साइंस करता है, तो एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसकी जो रेलेवेंस अगर पहले 10 साल थी, अब वो शायद 2 साल है. ठीक है. So what is important is not what you know, but is the speed at which you are able to learn a new thing. भाई, मैं जो किताबें लिखता हूँ ना, मैंने 3 बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं. पहली मैंने किताब लिखी because I felt I knew a lot and had to share it with the world. मेरे को बहुत आता है. मैंने सेकंड और 3 किताब लिखी हैं very fairly difficult topics, data and AI, because I felt I had to learn. और लर्न करने का बेस्ट तरीका है कि रिसर्च करके किताब लिख लो. So I'm just giving an example that learning is so critical. So the skills we need to focus on are, हमने context की बात करी. Context एक बहुत बड़ी चीज़ है. Context कैसे आएगा? वो lived experiences से आएगा, वो किताब पढ़ के नहीं आएगा. और हमारे देश में एकेडमिक रिगर बहुत है और उसका हमें फ़ायदा भी हुआ है बहुत. We dominate, for example, the world of technology globally. But अगर आप देखेंगे अमेरिका में, बहुत सारे देशों में, what they do very well is this thing about lived experiences. कोई जो बच्चा है, वो कितने भी उसके जो पेरेंट्स चाहे मिलियनर क्या बिलियनर क्यों ना हो, वो भैया नौकरी कर रहा है, वो बर्गर को फ्लिप कर रहा है, बर्गर को फ्लिप कर रहा है. और अगर वो कॉलेज जाता है तो वो लोन लेता है खुद और काम करता है लोन चुकाने के लिए. तो इट्स अ वेरी डिफरेंट सेट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस. तो भैया वो एंटरप्रेन्योरियल आइडिया कहाँ से आते हैं? वो किताब पढ़ के नहीं आते हैं या पॉडकास्ट से नहीं आते हैं. अगर इलॉन मस्क हम कहते हैं कि इतना इज लाइक सच एन इनक्रेडिबल एंटरप्रेन्योर हु हैज क्रिएटेड लाइक रीशेप्ड मल्टीपल इंडस्ट्रीज एंड क्रिएटेड मल्टीपल $1 trillion एंटरप्राइजेस. अरे भैया, जब वो 12-13 साल का था, वो रॉकेट बना रहा था, वो हाथ से, वो खुद रॉकेट बना रहा था. वो तब से प्रोग्रामिंग कर रहा है.
तभी उसने इतने 40 बिलियन देके या कितने देके ट्विटर खरीदी, 2/3 उसने एम्प्लॉयज को फायर कर दिया और बैठ के खुद कोडिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये कहीं हवा से नहीं एंटरप्रेन्योर बनता। You have to do it. You have to do it. It's about lived experiences, and that's a big shift that needs to happen in our academic curriculum. It needs to be a lot more about lived experiences. And before, when earlier we were chatting, Jatin, and you also talked about problem solving, structured problem solving. Yes. That's a very, very big thing. Ab nature of problem is not a given. That may keep on changing. But what is that problem solving process which allows you to tackle any problem? That is structured problem solving. और वो बच्चों को स्कूल में सिखाना जरूरी है। और फाइनली एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका एक जो चस्का जो है, वी हैव टू ग्लैमराइज इट ना, वी हैव टू उसको शुरू से हमें करना है, एंड दिस प्रोसेस नीड्स टू हैपन इन स्कूल्स। और मेरे को कहीं लगता है कि मे बी शायद स्कूल में करना माइट बी इजियर देन डूइंग इट इन कॉलेजेस। अब पिछले 3 महीने में आई हैव बिन, ये मेरा तीसरा ट्रिप है इंडिया का, और मैं शायद 30 शहर गया हूँ या 25 गया हूँ, और मैंने एटलीस्ट 20-25 कॉलेजेस में मैंने बात करी है। मैं कॉलेज में जाता हूँ तो वहाँ पे 1/3 लोग सो रहे होते हैं। बट मैं अभी पिछले हफ्ते मैं यहाँ पे स्कूल में गया, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, छोटे बच्चे थे, और जितना उनमें एनर्जी थी, जितना क्यूरियोसिटी थी, जितना उनमें पॉजिटिविटी थी, सब ऐसे हाथ चढ़ के वो सवाल पूछ रहे थे वो। सो मे आई थिंक दैट द यंग जनरेशन टुडे इज आल्सो वेरी रेडी, एंड आई थिंक दैट्स मे बी उनको इतने प्री कंसीव नोशन नहीं है। जो बेचारा कॉलेज जा चुका है या पोस्ट ग्रेजुएट में, वहाँ पे तो उसको तो एक डंडा पड़ ही चुका है ना कि भैया यही करना है, isn't it? So there is content, where we talked about lived experiences, we talked about structured problem solving, we talked about entrepreneurship, just moving away from the technical skills. I think in the pedagogy, AI presents a tremendous opportunity which is quite simply untapped, which is personalization. Because अगर देखें AI का, what is it that AI does? ऑटोमेशन तो करता ही करता है, बट वन ग्रेट थिंग इट डज इज पर्सनलाइजेशन। आप अमेजोन जाते हैं, आप नेटफ्लिक्स जाते हैं, जो आपको दिखता है और आपकी वाइफ को दिखता है वो थोड़ा अलग है ना। एब्सोल्युटली, इजंट इट? दैट इज पर्सनलाइजेशन। उन्होंने आपका डेटा लिया और जो बेस्ड ऑन योर यूजेज पैटर्न, बेस्ड ऑन योर एस्टिमेट्स ऑफ व्हाट जतिन लाइक्स, कुछ अलग है वो, इजंट इट? नाउ दिस पर्सनलाइजेशन इज अ वेरी बिग फोर्स। अभी तक हमारी एक ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन ये है स्केल, हर चीज स्केल पे करो। स्केल मेंट स्टैंडर्डाइजेशन, यूनिफॉर्मिटी। हेनरी फोर्ड जी ने उन्होंने बोला, यू कैन हैव एनी कलर कार एज लॉन्ग एज इट इज द कलर ब्लैक। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मोटो है, स्केल थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये जो ट्राइफेक्टा है, डिजिटल डेटा एंड एआई, उसने इसको तोड़ा एकदम। यू कैन हैव स्केल विद पर्सनलाइजेशन, बट अभी तो ये रिटेल में हुआ, ई कॉमर्स में हुआ, एंटरटेनमेंट में हुआ। अब ये सोचिए ये सेम चीज एजुकेशन में। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट था पहले गुरुकुल का, गुरुकुल कॉन्सेप्ट वाज व्हाट? इट वाज हाईली पर्सनलाइज्ड। 1 साल तो पहले 15-20 बच्चे ही होते थे गुरु के साथ, और 1 साल तो गुरुजी लगाते थे पहले समझने में बच्चों को, ठीक है। देन ही वुड फिगर आउट कि अच्छा है, ये जतिन का ये टैलेंट है, नितिन का ये है, इसको ये पढ़ाना है, राइट? पर्सनलाइजेशन। अब दैट्स नॉट अ स्केलेबल मॉडल, बट विद एआई maybe we can have this concept of a digital gurukul, maybe a hybrid kind of learning models, which is some classroom but a lot which is very personalized. एक शायद आप और यहाँ पे लोग मेरे से बेहतर जानते होंगे, माई अंडरस्टैंड, जो मैंने पढ़ा है कि जो किसी भी क्लास में द पेस इज ऑफन ड्रिवन बाय द टॉप 10 परसेंटाइल। एब्सोल्युटली। तो अब वो जो टॉप 10 परसेंटाइल ने करा तो बाकी 90% तो और पीछे होते रहे ना। So this notion of personalization is a huge opportunity to my mind, जो अभी क्रैक नहीं हुआ है वो।
और मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो दैट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी अगले 5-10 साल में मेरे को लगता है कि इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट्स होंगे. सो एजुकेशन आई थिंक राइप इज very both necessary to have a change in the content, but I think there are also tremendous opportunities for a change in the pedagogy. When I talk about it, I've seen quite a bit of education systems in schools in India, and I speak specifically from the perspective of government schools. I see a big challenge that the teachers are more pressured and concerned and overburdened with finishing the syllabus and completing the curriculum and a whole lot of other things. And there is a lot of emphasis on assessments. But here you are talking about experiential learning and you're talking about a personalized learning. How do you think this? You said that you love paradoxes. Here is a paradox for you. How do you think we solve this paradox that exists? देखिए ये समस्या थोड़ी रहेगी, ठीक है. आई थिंक फंडामेंटली आवर कंट्री इज ऑल्सो अ कंट्री ऑफ एक्सट्रीम्स. सो जो भी आप हमारे देश के बारे में बोलेंगे उतना ऑपोजिट भी हम उतना ही कन्विक्शन के साथ हम उसको प्रूव कर सकते हैं. सो आई थिंक देर विल कंटिन्यू टू बी अ वाइड स्पेक्ट्रम डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन डिलीवरी. बट जतिन एक और चीज़ भी है कि जो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, डिजिटल डेटा, एआई, इनका बेसिक जो मूल्य है ना, दैट इज डेमोक्रेटाइज्ड. Right. ठीक है. लोग बात करते हैं डिस्पैरिटी की, मैं बोलता हूँ कि ये टेक्नोलॉजीज फंडामेंटली बहुत डेमोक्रेटाइजिंग है. कि आप चाहे यहाँ पे दिल्ली में करोल बाग में बैठे हैं, या आप कर्नाटका में कहीं पे काकीनाडा में बैठे हैं, या आप गुजरात में नवसारी में बैठे हैं, या फगवाड़ा में बैठे हैं, ठीक है, या बुलंदशहर में बैठे हैं, आपको सेम कंटेंट अवेलेबल है ना. Yes. अवेलेबल है ना. आप जो बॉस्टन में, हार्वर्ड में जो पढ़ाया जा रहा है वो अवेलेबल है ना. जो सिलिकॉन वैली में, स्टैनफोर्ड में पढ़ाया जा रहा है, या जो लेटेस्ट है वो आज अवेलेबल है ना. तो वो भी एक बड़ी बात है. और हमारा जो मेरा अपना मानना है कि जो इनोवेशन काफ़ी आने वाली है वो बड़े शहरों से नहीं आने वाली है. बड़े शहरों से नहीं आने वाली है, वो छोटे शहरों से, टियर 3, टियर 4, रूरल इंडिया से एक एक्सप्लोजन होने वाला है. एक भारत का ना बहुत बड़ा बैरोमीटर है इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है. Yes. तो पहले जो हमारी सारी जो क्रिकेट टीम थी ना, वो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई से आती थी. आज तो हार्डली कोई वहाँ से आता है. Now it's all tier 2 and tier 3. इट्स टियर 3, 4. अगर कोई बॉम्बे से, अगर वो यशस्वी जायसवाल बॉम्बे से अगर दिखाते ना, बॉम्बे से नहीं है वो, नहीं है वो. सो देयर इज अ एक्सप्लोजन हैपनिंग इन इंडिया, एंड देयर इज अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ अवेयरनेस, देयर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. और ये टेक्नोलॉजीज हेल्प इन दैट कि भाई उसमें किसी को टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए यार, इतना क्या फर्क पड़ता है. टीचर अच्छा पढ़ाता है, आप यहाँ पे अच्छा पढ़ाते हो, तो आपका बड़े रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं यहाँ पे, आईएएस के देखे मैंने भी बाहर. बट जरूरी तो नहीं है ना कि आर यू जस्ट डिपेंडेंट ऑन द क्लासरूम और द टीचर. एब्सोल्युटली नॉट इन टुडेज वर्ल्ड, isn't it? And so I'm not that pessimistic. Okay. Because हमारे जो भारत में जो है ना, बड़े लोग काफ़ी रिसोर्सफुल और जुगाड़ू हैं. सो यहाँ से बहुत टैलेंट निकलेगा, एंड दिस टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन दैट. You talked about the framework approach to solving problems, and I'd like to tell the audience that there is an entire chapter that is in this particular book where Nitin talks about his entire collective experience of working at McKinsey and working in operations and helping the companies improve their operations, where he has given a 7-step approach to solving problems in a very structured manner. So I think it'll be wonderful if you go through it. It's something which gave me also a lot of perspective of how you can. And he doesn't talk about solving only problems in the corporate world. He'll talk about solving a problem as simple as losing weight, so which I need to do. So the practical examples that he has given in the book, I think that is something which is amazing. So all of you should definitely catch hold of the book. That brings me to another important point when we are talking about the human edge, and you touched upon it earlier as well, which is the mindfulness and the fact that the spirituality that each of us carries within us is something which the machines don't have.
and that kind of distinguishes us from the machines in today's day and age. You have talked about a lot of your experiences related to mindfulness. You have been a practitioner of vipassana and art of living and number of ways in which you have connected with yourself. Why is it very important to have the have a mindful approach in today's day and age, one, and for someone who's in their 20s, how can they start with it at this time? See, देखिए हमने बात करी कि in the AI age, being human is even more important. Yes, are you with me? Yeah. And see, we are spiritual beings. Okay, that's an aspect of who we are. Whether we acknowledge it or we ignore it, वो हमारे ऊपर है. हमारे जो ट्रेडिशन में तो हमने उसको हमेशा, वो तो हमारा मूल था. In our tradition, scientist and a seer, a spiritual guru was the same person. Okay, was the same person. The Western philosophy made a differentiation. The Western philosophy made boxes. Our philosophy was never about boxes. Okay, हमने तो उसको हमेशा ही continuum माना है. Anyway, leaving that ideological point aside, आपको मैं बहुत simple बात करता हूँ. The AI age, the digital age, is the age of noise. Yes, we are constantly bombarded with signals. मोबाइल से सिग्नल आया, कुछ सोशल मीडिया से कुछ आया, हर 5 मिनट में हम चेक कर रहे हैं कि भैया ये ट्विटर पे, एक्स पे क्या हुआ, या मेरा जो है इंस्टाग्राम में मैंने रील डाली थी उस पर कितने लाइक्स आए. नहीं होता है कि नहीं होता है? यस और नो? और जितना वो करते हैं इट लीड्स टू दिस नम्बनेस. नहीं, आपको नहीं लगता? मेरे को तो कई बार लगता है कि दिमाग सुन्न हो रहा है. ओके, एंड सो हाउ डू यू फाइंड क्लैरिटी? एटलीस्ट मेरा प्रोसेस तो है कि मैं 20 मिनट ध्यान पे बैठता हूँ, और आप ध्यान करें तो ऑटोमेटिकली क्लैरिटी हैपन्स. जो दुनिया इतनी धुंधली दिख रही होती है और इतनी प्रेशराइज फील कर रहे होते हैं आप कि यार सब कुछ मेरे सिर के ऊपर ही गिर रहा है, तो सडनली शांति थोड़ी हो जाती है. इजंट इट? शांति होती है, क्लैरिटी होती है, आप थोड़ा बेहतर सोचते हो. जो एम्पैथी की बात है, कंपैशन, केयर की हमने बात करी, वो भी आती है. सडनली ऐसा नहीं लगता कि मेरे को उसको जाके पिटाई करनी है. नहीं, कई बार लगता है ना अंदर से, तो फिर सडनली शांति आ जाती है. तो ये प्रैक्टिकली मेरे को, ये दिस इज माई प्रैक्टिकल थिंग, और ये मैं जो है पिछले 40 साल से यादा से मैं कर रहा हूँ. मैं मेरे लिए तो सिंपल प्रोसेस है इज मेडिटेशन. ठीक है. नाउ फॉर डिफरेंट पीपल द मेथड माइट बी डिफरेंट. मैं सबको नहीं बोल रहा कि आप मेडिटेशन ही कर लो. ठीक है, मेरा ये मेथड रहा है. देयर कुड बी अदर थिंग्स, देयर कुड बी रनिंग, देयर कुड बी गार्डनिंग, देयर कुड बी प्रेयर. भाई कुछ भी कर लो. यू नीड to, I define spirituality very simply as a process of going inside yourself and being immersed in that particular. हाँ, उसमें भाई वो भी इमर्स जो है ना, आप बोलोगे कि यार मेरे को ध्यान करने, ध्यान कभी नहीं होगा. ध्यान का बेसिक फिलॉसफी है कि अगर बोलो कि मेरे को पीस एंड क्वाइट चाहिए, कभी हो ही नहीं सकती पीस एंड क्वाइट. इजंट इट? इट्स अ प्रोसेस ऑफ ड्रॉपिंग एवरीथिंग. आप ड्रॉप करेंगे, अपने आप शायद काम एंड पीस हो जाएगा. सो but it is a process of dropping. It's a process of the chhod diya. I drop and I just go inside myself, and it's a super process. It unlocks a lot of the powers. हमने जो context जो है curiosity, creativity, care, उन सब की बात करी, वो मेरे लिए तो ये सूत्र है. This is the foundation of it. So that's why I talk about it so passionately. और ये हमारे देश में तो ये हमारा, there are everything that a civilization good at, we are not good at. अरे भैया, we are not good at sports. ओलंपिक्स में सारा 5 मेडल नहीं आते हमारे, बट ये चीज में हम अच्छे हैं. ये हमारी नेचुरल स्ट्रेंथ है. मैं यहाँ पे बैठ के, इस देश में बैठ के ध्यान करता हूँ, मैं अमेरिका में बैठ के ध्यान करता हूँ. जमीन आसमान का फर्क है. ये आवर कंट्री, दिस लैंड इज ब्लेस्ड. इट इज, दिस स्पिरिचुअलिटी इज अ नेचुरल थिंग फॉर अस. हम ना करें, हम कोई ना करें, but हम सब में ये अंश है, because it is so embedded in our culture and civilization. And I feel that this is something we have to really embrace and make more
more pervasive, and हमने एजुकेशन की बात करी, मैं तो ये भी बोलता हूँ यार कि हर स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए कि आप ध्यान से खाएं. Before I take a few questions from the audience, I want to understand something. You said that you've been practicing meditation for 20 years now. 40 years. 40 years now. So when you started practicing meditation, what was some of the major changes that you saw in yourself and personality, or maybe things that others around you, probably your friends or family, could notice in you, so that it becomes more relatable for our audience to understand कि being mindful, slowing down at times can bring me these advantages. मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी चूरन नहीं है, ठीक है. और मैं ऐसे बात करना भी नहीं चाहता हूँ कि अगर कोई भी करता तो ऐसे कभी बात नहीं करेगा, मैंने किया सडनली मेरे को ये हो गया, मेरा ये बढ़ गया वो बढ़ गया, सब बेकार की बातें हैं, ठीक है. दैट इज़ नॉट द बेसिक प्रैक्टिस, दैट्स नॉट द प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन ऑफ मेडिटेशन एज वी बिलीव एंड प्रैक्टिस इन दिस लैंड. हम तो पहली बात, ये माइंडफुलनेस वर्ड भी हमारा वर्ड नहीं है, Right. क्योंकि वो मेडिटेशन, क्योंकि वो हमने करा है तो अब उसको नया देना चाहते हैं तो माइंडफुलनेस बोलते हैं. ये चूरन नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आप इसको ये करोगे तो एकदम सडनली हो जाएगा. ओके, इट्स यू हैव टू एक्सपीरियंस इट. यू नो, आई विल जस्ट इंकरेज एवरीबडी टू एक्सपीरियंस इट. आप ध्यान में बैठें, आप ध्यान में बैठें. एक कोई बुद्धिस्ट जो हैं टीचर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बोला है, ये बहुत अच्छा बोला है कि एवरीबडी शुड सिट इन मेडिटेशन फॉर 20 मिनट्स एवरी डे, ठीक है. एंड इफ यू डोंट हैव 20 मिनट्स टू सिट इन मेडिटेशन, यू शुड सिट फॉर 1 hour एवरी डे. आप समझ रहे हैं? सो इसको ध्यान में आप बैठें तो अपने आप क्लियर होगा. जहाँ तक मेरा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक आई एम समबडी हु हैज गॉट अ लॉट ऑफ एनर्जी, who's got a lot of energy. और वो एनर्जी जो है वो अलग अलग तरह से आती है. वो एंगर में भी आती है, वो कई बार डिसिपेट भी हो जाती है. ज़रूरी नहीं कि एनर्जी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें भी जा सकती है. तो फॉर मी इट इज़ अगेन दैट डुअलिटी और पैराडॉक्स कि मेरे लिए एनर्जी भी, मैं स्पोर्ट्स मेरा शुरू से बहुत, आई हैव बीन वेरी एक्टिव एथलीट, बट फॉर मी देन मेडिटेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई प्रोसेस. मैं अभी गुड़गांव से यहाँ पे आया हूँ. I came late yesterday night and दिन में मेरे 6 चीज़ें और हो चुकी हैं. So I have to come. मैं ठीक, एनर्जी ठीक लग रही है मेरी, बिकॉज मैंने बीच में 30 मिनट मेडिटेशन करी है मैंने. दैट्स माई प्रोसेस. सो इट्स उसको ये कभी सोच के मत करो कि कोई लड्डू है और मैंने अभी मेडिटेशन करी तो एक जो है ना बड़ा मेरे को लड्डू मिल जाएगा. वैसे सोच के नहीं करना है. इट्स you know, where everything is about grabbing and getting. So meditation is about nothing. It's about nothing. But one last follow-up question on this, Nitin. Is it necessary to have a teacher or a It really guru helps. to... It really helps. It really helps. ये ज़माना सेल्फ हेल्प का है और सब कुछ. मैंने भी देखिए शुरू में, शायद जब मैंने 13-14 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट करा तो मेरे अंकल ने, मेरे मामा जी ने मेरे को सिखाया, ठीक है. बट फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, शायद 20 साल मैंने अपने आप किया. एंड फिर शायद लाइफ का ऐसा कुछ मोड़ आया कि मैंने एक आर्ट ऑफ लिविंग तब मैंने करा, मैंने एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस करा, एंड उससे मेरे को बहुत हेल्प हुई. सो ये प्रोसेसेस बहुत डीप होते हैं. और जो गुरु ऐसा नहीं जो मूवीज़ में दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता है. एंड गुरु कोई भी हो सकता है. आप मेरे को कुछ चीज़ अभी सिखा रहे हैं, आपके अपने क्वेश्चंस के थ्रू आप गुरु हैं. सो ये हमारे ईगो की बात है. हमारे ईगो की बात है कि हमें लगता है कि हम बहुत ही बड़े हैं तो हमारे गुरु कौन होगा. तो वो थोड़ा आप ईगो को ड्रॉप करें और किसी को अगर गुरु माने. और आई थिंक इट हेल्प्स इन अ जर्नी, वेदर इट इज़ मेडिटेशन और इट इज़ एनीथिंग एल्स. आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप किसी को गुरु नहीं मानेंगे तो कैसे सीखेंगे उससे. अगर आप गुरु नहीं मानेंगे तो हमेशा एक माइंड में द्वंद्व चलता रहेगा ना, ऑपोजिशन चलता रहेगा कि नहीं, वो बोलेंगे नहीं ये बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, कैसे इसने बोल दिया, इसका प्रमाण क्या है, एविडेंस क्या है. मन में जब तक ये चक्कर चलता रहता है ना, अंदर हम अब्जॉर्ब नहीं कर पाते. हम उसको फाइट करते रहते हैं. एंड that's why faith is very important, and faith still works.
बिकॉज जब एक बार हमें ट्रस्ट होता है, एक फेथ होता है हमें, तो दैट थिंग गोज डाउन। अब वो भी अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भैया, फेथ आप ठीक चीज पे, ठीक इंसान पे, ठीक गुरु पे करें, ठीक है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेथ पर से is an extraordinarily powerful concept which, because of our Western education and this whole thing that, you know, I'm a product of that, I'm taught in a very analytical fashion. I went to IIT Delhi, I'm Lucknow, I spent my career in McKinsey, I'm as analytical as it gets. That kind of teaches you to be a critique, to be a skeptic, and that makes it difficult for you to absorb. Yeah, but our Eastern philosophy and culture is very also driven by acceptance and absorbing, and I think there is something to be said about it. So guru जो है शायद काफी important है. Thank you so much for throwing light on that. In your book as well, you have talked about unlearning being another very important skill in today's day and age, because unless you know how to unlearn whatever that we have learned, there is no scope for learning something new. Before I move ahead with the next section, if we have a few questions from the audience, I think we would love to take Yeah, I would those. love to hear from Yes, and please put up your hands and please feel free to ask. Yes, please go ahead. Hello, sir. Anji. Myself Anurag Kesrwani, and I am a software engineer. I have worked for 3 years in software development field. Last year, I left my job due to the recession, and also my offer got revoked. I had cleared some interviews. Sir, at that time period, I was very curious to explore which fields I can put my efforts to grow. So I chose UPSC because it gives us very good job security, financial security, others. But what are the other fields which we can explore? Like where the things like means job security is there. As you mentioned, 1.8 billion jobs people may lose, and entrepreneurship is another field which we can explore. Apart from this, what should be our plan B, basically, where we can explore our skills and all those develop? देखिए, कहीं आपको अपने माइंड से वो जॉब सिक्योरिटी वाली जो बात है वो थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी, ये निकालनी पड़ेगी। ये पूरा मैंने अभी तक जो बात करी उसका मुद्दा तो यही है, दैट वी आर एडिक्टेड टू दैट। और देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट दिस फिनोमेना ऑफ जॉब्स इज अ फिनोमेना ऑफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ल्ड। ये पिछले 200-300 साल हैं कि ये फिनोमेना ऑफ जॉब्स एट स्केल रहा है। प्री द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मोस्ट पीपल वुड बी व्हाट यू विल कॉल सेल्फ एम्प्लॉयड, नो? तो व्हेन फॉर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दैट्स हाउ द ह्यूमन बीइंग लिव्ड एंड सर्वाइव्ड, तो हम इतना पिछले 200-300 साल से इतना क्यों कंडीशन हो गए हैं? सो थोड़ा सा आपको जब तक ये सिक्योरिटी सोचते रहोगे तो आपको इनसिक्योरिटी ही रहेगी। I think the biggest risk in this age of AI is not taking risk. Is not taking risk. UPSC की जॉब भी कब तक रहेगी? Kind of concepts are coming, and in Jujusri also they have the AI-based administration system where they pass which particular case belong to which lawyer. All those distribution happening means AI is being used in the governance. See, देखिए, आपने बोला आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। देखिए, the job that is going first is the technologist job. Like I run a technology company. शायद the work we do is at the highest end of technology. Over this year, we have got 40% productivity using AI. और वो नंबर अभी तो 10 महीने में है वो नंबर। Digital natives like Meta are reporting 80%. 40% has not meant 40% fewer humans, but it has certainly meant fewer humans. ठीक है, मैंने बात भी करी, अगर थोड़ा शॉर्ट मीडियम टर्म की परस्पेक्टिव से बात करेंगे, विच इज़ अबाउट द वैल्यू ऑफ कॉन्टेक्स्ट। शॉर्ट टर्म में जो एडवांटेज है वो कॉन्टेक्स्ट है। आपको एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर शायद आपकी जॉब नहीं रहेगी, बट अगर आपको कोई डोमेन स्पेशलाइजेशन है, अगर वो बैंकिंग में है, आपका हेल्थ केयर में है, या कोई फंक्शनल टॉपिक भी है, मार्केटिंग में है, साइबर सिक्योरिटी में है, और फिर आप टेक्नोलॉजी, अगर हम टेक्नोलॉजी का ही एग्जांपल लें,
I think your chances of a job will be far higher. So in the short, medium term, this context is going to be very important, because more and more technology, AI, and it's the big platforms. We are in a world of platforms. As an engineer, you understand that. AWS, OpenAI, that platforms will take a lot of the technical task. बट उसमें जो एक स्पेसिफिक वर्टिकल इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स और टास्क है वो इतनी आसानी से नहीं ले पाएंगे. एंड इन द शॉर्ट मीडियम टर्म दैट्स द अपॉर्चुनिटी. Can we have other questions from the audience? Yes, here. या नमस्ते सर. सर अभी आपके आने से पहले सर से हमारी बात ही आपके विचार विमर्श हो रहा था कि आपका स्वागत होगा. तो सर ने बताया कि एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि जब हम एकेडमिक्स में किसी डाटा का यूज करते हैं, जैसे अभी हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड कहीं पे अगर हमें डाटा इनपुट करना होता है तो हम चैट जीपीटी पे नॉर्मल जाके सर्च करते हैं डैश डैश डैश, और वो हमें पूरे एक नॉर्मल से उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देता है. बट उसका हमें ऑथेंटिकेशन कितना है, कितना वो रिलेवेंस है, कितना वो यूजनेस है कि हम उसे अपने यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से भी यूज कर पाएँ. तो पहला सर क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम अगर उन डाटा को यूज करते हैं तो वो रिलेवेंसी, अगर नहीं है तो फिर उसके अदर ऑप्शंस क्या है कि जो हमें रिलेवेंसी दे पाएँ और हम उसे यूज कर पाएँ. दूसरा क्वेश्चन सर ये था कि हम एआई की बात कर रहे हैं, तो एआई हमारे रियल लाइफ में डे टू डे चीज़ों में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सर ये हमारे थिंकिंग प्रोसेस को भी बहुत स्लो भी कर रहा है. अगर हम एआई से काम आसान करवा रहे हैं तो वो हमारे थॉट प्रोसेस को भी तो छोटा बनाता जा रहा है. तो अगर ये चीज़ हम देखें तो हम गवर्नेंस की फील्ड में जा रहे हैं जहां हमें थॉट प्रोसेस बहुत स्मार्टली होना चाहिए ताकि हम डिसीजन मेकिंग पावर हमारी स्ट्रांग हो जाए. तो उस हिसाब से अगर देखें तो कहाँ पे हमें अपने थॉट प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए, थॉट प्रोसेस को बहुत ही स्मार्टली यूज करने के लिए एआई का यूज करना चाहिए, और वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है. थैंक यू सर. ये दोनों सवाल आपके बहुत ही अच्छे सवाल हैं. थैंक यू. जो आपने पहला सवाल करा कि एआई का जो आउटपुट है, जैसे रिसर्च के लिए या अपना फॉर स्टडी, देखिए अभी मैंने पहले भी बोला कि एआई का जो अभी आउटपुट है वो शायद 40 से 65% एक्यूरेसी के बीच में है. ठीक है, तो वो खिलौना है अभी, बट हमने उस खिलौने को एक वास्तव जो एक उसको एक्चुअल हमने मान लिया. कोई भी जो कॉरपोरेशन, एक जो जैसे बैंक है या कोई प्रॉपर कंपनी, वो ऐसे यूज नहीं करती है एआई को. ये तो अभी आपके पास मोस्ट लाइकली आपका फ्री वर्जन है जो आप यूज कर रहे हैं, इजंट इट? तो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ इट. देखिए जो एआई एक्चुअल तरीके से जो यूज होता है, उसके एआई इज नॉट इक्वल टू चैट जीपीटी. अगर आप एक मैसेज लेके जाएं एआई के बारे में तो ये जरूर लेके जाएं, एआई इज नॉट इक्वल टू चैट जीपीटी. उसका जो एक दैट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट कि एक मेरे को 40-60% आंसर मिल गया, उसके बाद जो है उसको और स्पेसिफिक डेटा के साथ मर्ज करना ज़रूरी है. एक कंपनी वैसा ही करती है और आपको भी वैसा शायद करने की ज़रूरत है. ठीक है, एक तो फॉर स्टार्टर्स जैसे भी कोई चैट जीपीटी का आउटपुट है और जो कोई भी इंपॉर्टेंट आउटपुट है, और आप सिंपल एक चैट जीपीटी से हर बार एक सवाल पूछ लिया करें कि इज दिस रियल और वर यू और डिड यू मेक इट अप. ये बहुत एक सिंपल और बेसिक टेस्ट है, और ये चैट जीपीटी इज वेरी ऑनेस्ट. इट लाइज ऑल द टाइम, बट इट इज वेरी ऑनेस्ट व्हेन इट इज कॉल्ड आउट. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरी किताब है ये, अब मैंने जब लिखी, एक किताब लिखने में एक सबसे पेनफुल प्रोसेस पता है क्या है? किताब लिखना तो मेरे को बहुत पसंद है, बट मैं हर चैप्टर से पहले ना मैं एक कोटेशन लिखना मेरे को पसंद है. अब वो उस चैप्टर के हिसाब से कोटेशन ढूंढना बड़ा कठिन काम है. ठीक है, तो मैंने चैट जीपीटी में यूज किया मैंने, और इतनी बढ़िया कोटेशन आती है, बट उसमें 70-80% इसने खुद बनाई होती है, और एकदम कॉन्फिडेंटली ये कोटेशन है, दिस इज बाय बिल गेट्स,
ये कोटेशन है, ये सुंदर पिचाई ने दी है और एकदम फिट करती है, मैं उसको देता हूँ यार ये चैप्टर है, इसके लिए कोटेशन दो। बट मैं उससे पूछता हूँ कि भाई सही बोला कि फट्टे मारे हैं, बता देते हैं। सो दैट्स अ वेरी वेरी बेसिक टेस्ट यू कैन डू, ठीक है। बट जो इसको जो काम करने का, इसको वैलिडेट करना जरूरी है। किसी भी इंपॉर्टेंट चीज के लिए उसको आप एज गॉस्पेल मत लें, ठीक है। उसको अभी जो ये आउटपुट है ये 40 to 60% है, जबकि हम उसको ऐसा लगता है हमें, क्योंकि इतना ओवर कॉन्फिडेंट रिस्पॉन्स आता है कि हमें लगता है कि यही है। सो ये तो पहला हुआ, इसको वैलिडेट करना ज़रूरी है। आप चैट जीपीटी को ही यूज़ कर सकते हैं वैलिडेट करने के लिए। देखिए क्या है कि जितना जो भी सवाल आप पूछेंगे, अब वो ओपन एआई को, चैट जीपीटी को, चाहे वो परप्लेक्सिटी हो, चाहे वो ग्रॉक हो या कोई भी है, उसको कुछ कंप्यूट खर्च करना पड़ता है ना। यस, जो उसकी क्षमता है उसके ना, वो एक फ्रैक्शन के भी फ्रैक्शन के ऊपर वो आपको आंसर कर रहा है। समझ रहे हो आप? वो आपका जो आंसर है ना, वो बहुत ही एक सुपरफिशियल लेवल पे कर रहा है। उसकी चैट जीपीटी की एबिलिटी उससे हजारों गुना ज्यादा है, हजारों गुना ज्यादा है, ठीक है। तभी उसके साथ ना वाद विवाद करना जरूरी है। इज दिस करेक्ट? टेल मी मोर अबाउट दिस, गिव मी डेटा ऑन दिस, आई डिसएग्री, आई थिंक दिस इज द केस, कैन यू वैलिडेट दिस फॉर मी, लेट्स गो डीपर इनटू दिस टॉपिक। आप ये करें, आपको दिखेगा कि कैसे वो अंदर जाएगा और कैसे आपको और डेटा मिलेगा, ठीक है। तो वो जो पहला, सो दैट इज ऑल्सो व्हाट इज कॉल्ड द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि आप एक चीज को, एक सवाल को लेके करके आप उसको नहीं, यू कैन नॉट वर्क विद दैट। डज दैट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, डज दैट आंसर दैट? हेलो, यस सर। इस पर मेरे एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक अपना ट्रेन रिंगिया राजस्थान खाटू श्याम जी के यहाँ से है, वहाँ से गोरखपुर के लिए देख रहा था। तो उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर डे पे कोई ट्रेन अवेलेबल नहीं थी। अब मैंने यहाँ पे एआई का यूज करने का सोचा कि अगर मेरे थॉट प्रोसेस इतना काम नहीं कर पा रहे कि मैं ट्रेन को ही खोज लूँ, तो चैट जीपीटी को मैं ये प्रॉम्प्ट दूंगा कि भाई तुम बताओ मुझे कि अगर कोई डायरेक्ट ट्रेन हो फ्रॉम रिंगिया टू गोरखपुर, तो वो बताओ मुझे। अगर ना हो तो आप मुझे बताओ कि कुछ दो मिडिल के स्टेशंस लेकर के, वन ट्रेन एंड द अनदर ट्रेन, और उनके बीच में गैप आप 1 घंटे 2 घंटे रख लो मैक्सिमम। तो ये पूरा प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी को दिया। चैट जीपीटी ने मुझे 2-3 ट्रेनों के नाम से बताए, इवन उनके पूरे रूट्स बताए कि आप यहाँ से यहाँ आओ, फिर वहाँ पे 2 घंटे का 1 घंटे का रेस्ट लो, फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन यहाँ है। एंड उन्होंने जितने 3 रूट्स बताए, तीनों रूट्स के ट्रेन गलत थे। आई वॉज शॉक्ड। आई वाज, देखो सी द वे, अरे भैया सर मैं वहाँ रिंगिया स्टेशन पे बैठ करके ये कर रहा हूँ कि मेरा ट्रेन अभी आएगा। अरे आप उससे पूछ लो ना, उससे एक बार पूछ लेते कि ये एक्चुअल रियलिटी कि आपने ये अपनी hallucinating? ये आपको वो आंसर देता, ठीक। उसके बाद सर मैंने वो ट्रेन चेक किए तो पता चले वो ट्रेन कहीं और चल रहे हैं और वो कहीं और जा रहे हैं। बाबा ये आपको फिर मैंने ये सर उनसे बात कही, चैट जीपीटी से कहा कि जो आपने ये ट्रेन बताए ये तो कहीं और चल रहे हैं, आप मुझे बताइए जो अभी आज के डेट में अभी आज मुझे मिल जाए। फिर उन्होंने दूसरा ट्रेन दिया, वो भी नहीं है। Exactly. So that's what he's talking about, that you have to constantly keep nudging chat GPT as well, या AI को भी आपको constantly question करना पड़ेगा, because a lot of times the information that it is generating is just hallucinating and nothing else. So देखिए ये भी है कि व्हाट इज चैट जीपीटी। देखिए हमने एक और, मैं आपको चीज बोलूंगा कि AI is overhyped in the short term, ठीक है, but underhyped in the long term। ये overhyped इसी चीज के कारण है बिकॉज हमने बिना सोचे समझे जो है हमें लगता है कि चैट जीपीटी इज द आंसर ऑफ एवरीथिंग। मैं कभी यूज नहीं करूंगा इस चीज के लिए। आप शायद गूगल पे जाएंगे एंड अगर आप ट्राई करेंगे तो शायद आपको थोड़ा कुछ बेटर मिल जाता, ठीक है। तो ये बहुत, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी कंपनी ऐसा शायद नहीं करती है, कोई भी एक प्रॉपर लार्ज कंपनी अभी कभी चैट जीपीटी को या जेनिया को ऐसा यूज़ नहीं करेगी। ये हमारी भ्रांति है, हमारी गलती है।
और शायद किसी ने हमें बताया नहीं, किसी ने हमें सिखाया नहीं, बिकॉज इट इज सो ईजी एंड इट सीम्स टू गिव एन आंसर टू एनीथिंग यू आस्क। ये इसकी पावर है। शायद जो उसने आंसर होगा वो शायद बिल्कुल गलत नहीं होगा। वो अगर आप ये भी देखें तो इट इज नॉट 100% रॉन्ग, बट इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इन मेनी सिचुएशंस आप कोई नया टॉपिक आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज बहुत हेल्पफुल है कि आपको पहले एक 40-60% मिल गया, isn't it? बट जहां पे एक आपको डिसीजन लेना है, आपको ट्रेन चूज करनी है, तो यू कैन नॉट बी 40-60% ना। तो ये एक थोड़ा ध्यान में रखें कि भाई वेयर यू आर लुकिंग फॉर अ डायरेक्शनल इनपुट, दिस इज प्रॉब्ली क्वाइट हेल्पफुल, बट वेयर यू आर लुकिंग फॉर अ प्रिसाइज आंसर फॉर विच यू हैव टू मेक अ डिसीजन, ये खतरों का खिलाड़ी है। ठीक है, जो आपका दूसरा सवाल था कि वो बहुत ही बढ़िया पॉइंट आपने करा कि जैसे हम यूज करते हैं एआई को, उतना ही वो हमें छोटा कर देता है, isn't it? वो छोटा कर देता है, बट ये इतनी भी इजी सिचुएशन नहीं है कि हम बोलें कि इसको यूज ना करो। इसे कैच-22 बोलते हैं, इसे कैच-22 बोलते हैं कि हमें ऐसा भी नहीं कि हम उसको कि भाई इसको छोड़ दो, बट जितना यूज करोगे उतना ही आप सिकुड़ जाओगे। ठीक है, और ये इस फील्ड पे काफ़ी विचार हो रहा है, काफ़ी रिसर्च हो रही है, मैंने काफ़ी एजुकेटर्स से इसके बारे में बात करी है, कई अलग अलग राय हैं कि जैसे आप चैट जीपीटी को अगर कुछ आपको एक एसे लिखना है, कोई होमवर्क लिखना है, बिकॉज बहुत सारे स्कूल्स वगैरह में ये टॉपिक बहुत बड़ा है इस समय, बिकॉज बच्चे जो हैं सब चैट जीपीटी यूज़ करते हैं होमवर्क करने के लिए, तो टीचर्स बोलते हैं अच्छा भैया आपको हम चैट जीपीटी से मना कितना करेंगे, बट आप साथ साथ अपने आप भी करो और कंपेयर करो फिर आप। ठीक है, या पहले आप खुद करो और फिर आप उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आप चैट जीपीटी को यूज़ करो। तो आई थिंक अगले ये 6-12 महीने में इस विषय के बारे में काफ़ी और प्रैक्टिकल जो टिप्स आएंगी, बट जो ये पॉइंट है ये एक बहुत बहुत रेलेवेंट है कि एज एआई कीप्स ऑन बिकमिंग, बिकॉज देखो एआई तो हर, जैसे उसने गलत बताया फिर आपने उसको बोला कि आप गलत हो, उसने सीखा उससे। सो एआई हर इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्गर बन रहा है, बट वो भाई साहब हमें छोटा कर रहा है, विच इज द इंटायर पॉइंट, एंड दैट इज वाई द ह्यूमन एज इन द एआई एज। और ये जो पॉसिबल फ्रेमवर्क है, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और ओपननेस, स्पिरिचुअलिटी, स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ों की मैं बात करता हूँ, बिकॉज अगर आप उसका बिग पिक्चर समझें तो वो इसी के लिए है कि हाउ डू वी मेंटेन आवर ह्यूमन एज। Nitin, one quick question from my end, and probably slightly controversial as well. There is a lot of AI that is now entering into the area of mental health and psychological counseling. What are your thoughts about that? And बहुत बहुत ट्रिकी टॉपिक है ये, बहुत ट्रिकी टॉपिक है। इट्स द कॉज एंड आंसर बोथ। आंसर की तरह भी यूज हो रहा है इस समय, जो है ना, अगर आप, देयर आर हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप्स, Jatin, which are trying to address mental health through use of AI. और इसके results भी ना shocking है Jatin. So there have been a lot of research, मैंने शायद पहले बोला भी इसके बारे में कि ये online nursing, AI is like 9 times out of 10 times showing more empathy. wow, More empathy than the human nurse. Why do you think that is happening? because it's been trained. नहीं, ट्रेनिंग की तो है, बट क्यों हो रहा है? बड़ा सिंपल इसके आंसर है। Why is AI showing more empathy than the human? अरे सिंपल Because बात, humans are real. अरे सिंपल बात है। एम्पैथी क्या होता है? आई एम रिफ्लेक्टिंग योर इमोशन। Right. जतिन बोलेगा मैं सैड हूँ, तो AI बोलेगा जतिन आई अंडरस्टैंड, यू रियली सैड, यू रियली सैड। आप अपनी बीवी से बात करोगे, जतिन ठीक ठीक लगा लो यार, जाके जरा ये काम करो, isn't it? So see, AI is very good at mimicking. It reflects. It's very good at mimicking, and it does it without a bias. So और ये जो काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग यही होती है ना कि मैं बहुत परेशान हूँ, अब वाकई में बहुत परेशान हूँ, हैव यू थॉट अबाउट दिस? बट जो इसके दोनों ये चीजें हैं कि पहला तो जो जितना सोशल मीडिया या एआई है इज ऑल्सो कॉज ऑफ मेंटल हेल्थ, Right. इज अ कॉज ऑफ मेंटल हेल्थ, बिकॉज हम दिस हमने जो बात करी कि हमारा दिमाग सुन्न होता जा रहा है,
isn't it? सुन होता जा रहा है। और दूसरा है कि इसमें ये जो आपने जिससे हेलुसिनेशन की आप बात कर रहे थे, जैसे अरे भैया कितना डेंजरस है वो, कितना डेंजरस है। बोले कि नहीं मैं तो उसको, मेरे को मारना है, कहेगी हाँ आई एग्री, ये तो बहुत बुरा करा उसने, isn't it? So it's a very controversial topic, and I think there is a lot happening. Maybe देखिए हेल्थ केयर एंड AI एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें देखिए पॉजिटिव एडवांटेजेस भी हैं, जैसे हमारा देश है कि उसमें डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर इतना अभी भी इतना वी प्रोड्यूस द मैक्सिमम, Accessibility is still a problem. एक्सेसिबिलिटी इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो उसमें वो जतिन बहुत बड़ा एक सोल्यूशन भी है, बट we have to be very careful about it. This whole thing about data, usko, how do you manage it properly? How do you make sure models don't have biases? What controls you put? There is a lot to be done there. So ये बहुत tricky topic है. I know we are running out of time. If we have a few other questions from the audience and then like one last section and then we can wrap this up. Yes, please. Sir, my name is Dhanji Pandey. My question is, sir, you were talking about the human being, human intelligence, human age. Can AI take human intelligence in future? It can overpower. देखो धीरे धीरे तो कर ही रहा है वो, नहीं देखिए ऐसा है कि अभी लॉट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन जो है इज वेरी ड्रिवन बाय वेरी एक्सट्रीम पिक्चर्स, ठीक है, कि यार एक तो है कि AGI का आपने नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो है कि एकदम ह्यूमन की तरह है, बिकॉज अभी जो इंटेलिजेंस है वो स्पेसिफिक होती है, ठीक है, कि वो विच अप्रॉक्सीमेट्स और इज इवन बेटर देन ह्यूमन इंटेलिजेंस, उसको सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं। कि यहाँ तो हम उसकी बात करते हैं, यहाँ बोलते हैं कि भैया AI बिल्कुल ही बेकार है, उसने मेरे को ट्रेन का एड्रेस ठीक नहीं दिया, isn't it? तो हम एक्सट्रीम्स के बीच में बात करते हैं, जो रियलिटी है वो शायद बीच में है, कहीं रियलिटी बीच में है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये AGI और सिंगुलैरिटी वगैरह के बारे में आप बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें कंफ्यूज हो, ठीक है। देखिए AI बढ़ता रहेगा, जितने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि जो हम एज अ ह्यूमन बीइंग उससे डील कर पाते हैं, जैसे एक वर्ड, बड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड है कॉन्शियसनेस, यस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन, बट समवेयर एज ह्यूमन बीइंग्स वी अंडरस्टैंड इट, isn't it? Now AI doesn't understand consciousness, but what it does is that it breaks down the concept of consciousness into maybe 100 elements or more, ठीक है, और वो एक एक करके चलता है कि मैंने ये एलिमेंट करा, मैंने ये एलिमेंट करा, मैंने ये एलिमेंट करा। अब जैसे हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करी है, एम्पैथी की बात करी है, इमोशंस एक बहुत ही वास्ट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। उसने कहा अच्छा मैंने मिमिक करना सीख लिया, मैंने इमोशन को एसेस करना सीख लिया बाय फेशियल एक्सप्रेशंस एंड अदर एक्सप्रेशंस, और ये बहुत वाइडली यूज्ड है, आप हैरान रहेंगे, ठीक है। जैसे मैं फिडेलिटी का CEO था इंडिया में, और मैं ग्लोबली ट्रांसफॉर्मेशन हेड करता था, कि वहाँ पे फिडेलिटी के ऑफिस में जाएं, कैमरास लगे हुए हैं और वो कस्टमर को ऑब्जर्व करते हैं। बाय द टाइम यू कम टू एडवाइजर, और ये तो वेल्थ एडवाइजर है ना, आपका मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पोर्टफोलियो है, उसको सेंस हो जाता है कि आप किस मूड में आए हैं। आप अच्छे मूड में आए हैं तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अब खराब मूड में आए तो ज़्यादा बेचना नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो AI जो है उस चीज़ को ब्रेक डाउन करता है। तो जो आपका सवाल था कि कैन इट गेट टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, देखिए द इंटायरिटी ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंस मेरे हिसाब से इनफाइनाइट है, मेरे हिसाब से इनफाइनाइट है। और तभी मैं ह्यूमन एज की बात करता हूँ, बिकॉज मेरा मानना है कि एज ह्यूमंस we are only accessing a fraction of our capability। और तभी मैं स्पिरिचुअलिटी की इतनी बात करता हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से इट इज ऑल्सो द प्रोसेस वेयर वी एक्सपैंड द कॉन्शियसनेस। जो हम एक बहुत ही छोटा सा गुब्बारा है उसमें हवा और फूके, ठीक है, सो हमारा जो दायरा है वो बहुत वास्ट है। AI उसमें वार करता रहेगा, एक एक करके आगे बढ़ता रहेगा। So it will keep on becoming more human. We have to get used to it. उसका आंसर ये है कि हम अपने गुब्बारे को प्रॉपरली फुलाएं,
Yeah? Does it answer your question? And I think the book is all about that human edge and getting to think and stay ahead of AI and technology. One last segment that I want to touch upon, Nitin, is that India has had a successful experiment with the UPI interface, and we have taken the world by a storm in many ways. And in your book as well, you've talked about that how India's strength lies in dealing and solving large scale problems. Uh, Given the fact that we have a huge demographic dividend at this point of time and the opportunity that AI presents to us, what are some of the key things that possibly policymakers in India need to look at in order to jump onto this AI bandwagon? ग्रेट क्वेश्चन, फेवरेट टॉपिक. मैं कल इस पे एक पूरी फोकस कॉन्वर्सेशन भी कर रहा हूँ. राजदीप सरदेसाई हैं, फेमस जर्नलिस्ट, उनके साथ मैं कल ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में इसी टॉपिक पे कर रहा हूँ. तो अगर कोई आना चाहे प्लीज़ आए. देखिए, ये पॉलिसी पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए. बिकॉज देखिए, एक हेडलाइन क्या है, एंड ऑफ एरा ऑफ जॉब्स एंड हेरल्डिंग द एरा ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. भारत के लिए ये और भी गंभीर विषय है. बिकॉज हमारा जो है यंग एज पिरामिड है. वी हैव 500 मिलियन पीपल बिलो द एज ऑफ 35. हमारी इकोनॉमी बहुत सर्विसेज ड्रिवन है. तो हमारे लिए तो ये खतरा और भी बहुत ज़्यादा है. और ये खतरा 10-15 साल आगे नहीं है, हमारे लिए तो खतरा अभी है. बिकॉज ये सर्विसेज, ये टेक्नोलॉजी, जैसे उन मित्र ने बताया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब, वो तो हमारी आज जा रही है. आज जा रही है, वो कल की बात नहीं है, आज का विषय है वो. ठीक है, तो हमारे लिए तो इसको एक, हमें तो सुनामी लानी है देश में. ये छोटा काम नहीं है, सुनामी लानी है. एक जो स्लोगन हमारे देश में होना चाहिए, हर घर व्यापार. हर घर व्यापार लाना बहुत ज़रूरी है. अब ये ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा, इसके लिए पॉलिसी लेवल पे चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं. अभी तो हमारी सरकार एक सेमीकंडक्टर लेयर बनाने में लगी है, जो इम्पोर्टेंट काम है. और फिर हमें एक फैसिनेशन है इस समय ये फाउंडेशनल मॉडल से, ये सब चैट जीपीटी. ये बहुत ही बड़ा भ्रांति है, ये बहुत ही बड़ी गलती है. जैसे हमने यहाँ पे भी बात करी है, चैट जीपीटी इज नॉट इक्वल टू एआई. आपने अपना बना लिया एलएलएम, उससे कुछ आप कहीं तीर नहीं तोड़ लेंगे. आपकी नौकरी तभी क्रिएट होगी कि जब इससे ऊपर आप एक एप्लीकेशन लेयर, जो जहाँ पे एक्चुअली आप इंडस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्व करें, वो करना ज़रूरी है. वहीं पे होप है कि वहाँ पर इतनी इंडस्ट्रीज हैं, इतनी हज़ारों मिलियंस प्रॉब्लम्स हैं, लाख करोड़ प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे रियली सुनामी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है वहाँ पे. बट उसके लिए बहुत अलग चीज़ चाहिए. अब ये एआई में एक जो अभी इशू है कि ये एआई बहुत ही कंप्यूट इंटेंसिव है. ठीक है, इसमें एनवीडिया दुनिया की सबसे वैल्यूबल कंपनी है. ये बड़ा सोच का विषय भी होना चाहिए. ये सबके लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है. इसका मतलब तो ये है ना कि इतने एनवीडिया के चिप्स चाहिए हमें. हाँ, तो महंगे हैं वो, बहुत बहुत महंगे हैं, और इसके लिए इतना डेटा चाहिए, isn't it? तो जो मेरा एक, पहले तो ये सरकार को समझने की ज़रूरत है कि भैया, इट इज़ नॉट अबाउट मेकिंग अ भारत जीपीटी, इट इज़ अबाउट द एप्लीकेशन लेयर. ठीक है, उसको इनेबल करने के लिए, ये हर घर व्यापार, सुनामी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए हमें, आपने यूपीआई की बात करी, बहुत अच्छी बात करी, कि उसका जैसे डीपीआई जो है इस समय, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भारत की इस समय एक धरोहर है, हमारा एक एसेट है, national asset है. We have done exceedingly well in that. It is time, I think, to rethink that, reimagine that. कि वो जो एक ऑलरेडी फाउंडेशन, एक स्टैक बन गया है आपका, उस स्टैक के ऊपर हम एक डेटा लेयर बनाएं, हम उसको एक मॉडलिंग लेयर बनाएं, हम एक कंप्यूट लेयर बनाएं, कि जिसको हम कंप्यूट जो है, हम एंटरप्रेन्योर्स को वी मेक इट अवेलेबल. जो हमारा डेटा है उसको पैकेज करके अलग अलग सेक्टर्स में जो डेटा है उसको हम अवेलेबल करें. हम जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं होती है. बहुत सारे कोर मॉडल्स जो हैं, हम उसको भारत के हिसाब से उसको वी मेक इट अवेलेबल. तो ये सारा मेरे हिसाब से, देखो, कैपिटल का तो एक अलग विषय है कि कैपिटल है, बट नॉट वेयर यू नीड इट. यू नीड लॉट ऑफ पेशेंट कैपिटल, वो तो एक अलग मुद्दा है. बट जो मेन मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें एक ये फाउंडेशनल मॉडल्स के साथ जो हमारा एक ऑब्सेशन है, उससे आगे बढ़कर ये एप्लीकेशन लेयर में जाना है. वहीं पे अपॉर्चुनिटी है. उसके लिए हमें एक इनेबलिंग इकोसिस्टम बनाना है. डीपीआई गिव्स अस अ ह्यूज एडवांटेज. हमें वो डीपीआई को हमें अपग्रेड करके एक एआई के लिए इनेबलिंग इकोसिस्टम अगले 12, 18, 24 महीने में इज अ मस्ट हैव.
And how important is skilling the population from this perspective? देखिए जतन, हमने पहले भी इस चीज़ की बात करी, स्किलिंग का जो ना बिल्कुल हम इसको समझते ही नहीं है, हम गलत अर्थ निकालते हैं। ये स्किलिंग जो है ना, सब लोग एकदम वही चूरन की तरह, एक जो है ना एक कूलेड की तरह बोलते रहते हैं, स्किलिंग स्किलिंग स्किलिंग। उसका किसी को अर्थ पता नहीं है। स्किलिंग सोचते हैं यार कि हमने हर जगह में भी नया कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं पे स्टार्ट हो जाएगा कि ये एआई ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। अरे सबसे बड़ी, वो एआई के लिए क्या ट्रेनिंग चाहिए आपको? कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, बच्चा भी अपने आप सीख लेगा कि हमने एआई सिखा दिया आपको, एआई सिखा दिया तो उससे आपकी जॉब रह जाएगी। ये सबसे बड़ा बेकार का स्लोगन है, ये बेकार का स्लोगन है ये। कोई एआई में सब आप लोग अपने आप सीख लेते हैं। वो स्किलिंग रीस्किलिंग नहीं है। जो स्किलिंग चाहिए, जो हमने बातें करी हैं अभी तक, कि जो आपने भी बात करी, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंटरप्रेन्योरशिप, डोमेन नॉलेज की हमने बात करी, ये चीजें हैं। इन चीजों को सिखाना मुश्किल है बट ज्यादा अनिवार्य है। ये सिर्फ एआई सिखाने से, वो एआई में क्या सिखाना भैया? या तो वो बनाओ ना कि आप एक डीप टेक इंजीनियर बनाओ, कि जैसे चाइना ने डीप सीक बनाया, 200 इंजीनियर। ओपन एआई में 4000 इंजीनियर है, डीप सीक में 200 इंजीनियर है। वो एकदम टॉप इंजीनियर्स जो हैं, स्टैनफोर्ड, बर्कले के अपने जो चाइनीज बच्चे थे, उनको वापस लेके आए, उन्होंने वो बनाया, जो मेरे हिसाब से चैट जीपीटी वगैरह से बहुत बढ़िया मॉडल है। बिकॉज वो एक 10वीं इट वर्क्स ऑन 1/10 ऑफ द कंप्यूट। यहां तो वैसा बनाए हम, ठीक है। बट वो अपॉर्चुनिटी भी ना बहुत कम लोगों के लिए है, बहुत कम लोगों के लिए है। वो हमें जो करना है, वो शॉर्ट टर्म में, मैं बार बार बोलता हूं, कॉन्टेक्स्ट, डोमेन नॉलेज, थोड़ा मीडियम लॉन्ग टर्म में एंटरप्रेन्योरशिप, ये स्किल्स हैं जो हमें सिखाने की जरूरत है। So instead of aping the West, because they have already leapfrogged us, वो हमारे लिए तो एकदम डिजास्टर्स रूट है। so we need to focus on the application layer as you talk about in the entire AI हमारे stack. लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। Thank you so much, Nitin, for this wonderful conversation, and I think the audience also gained a lot from it. If we have any last question, probably we have one last question, and then we wrap it up because he has further engagement. Yes. So an article from the Hindu last year said that firms and institutions, and whether they are working on the outsourced perimeter or anything, or any indigenous firm from the IT sector, they are relying more on small learning modules rather than large learning modules. So do you think, how would you construe it in Indian context about policy making, that in various fortes, do we need to rely more on small learning modules if we are going in future for AI as a problem solver? How do you see मैंने तो बोला ही अभी कि LLM जो है ना, हमें किसी को बिना सोचे समझे हम LLM बोलते रहते हैं, और आप भी बिना सोचे समझे LLM की जगह SLM मत बोलिए, वो भी वही कर रहे हैं। देखिए, एक बेसिक मुद्दे की बात है कि AI एक चीज़ नहीं है, एक मॉडल नहीं है, ठीक है। AI का जो एक्चुअल एप्लीकेशन है, आप उसको एक सिंपल टर्म्स में एटलीस्ट 3 लेयर है मॉडल में ही। भी डेटा तो अलग की बात है। एक बॉटम लेयर है कि जो some kind of a foundational model. That foundational model can be a large model. Large का मतलब है कि वो बहुत जनरल पर्पस मॉडल है, या इट कैन बी अ स्मॉल मॉडल। स्मॉल मॉडल का मतलब ये है कि वो स्पेसिफिक यूज पे है। तो क्या करता है, वो कम डेटा पे बना हुआ है और वो उसका स्पेसिफिक यूजेज है। सो उसका कंजम्पशन काफी कम है, बट सिमिलरली वो इट विल सॉल्व ओनली अ रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज एंटरप्राइजेस, वो ऐसा नहीं कि LLM वर्सेस SLM है, वो LLM भी यूज करेंगे, SLM भी यूज करेंगे, ठीक है। some set of problems where LLMs are more helpful, some set of problems where SLMs are more helpful. ये either और का ऐसा नहीं है, एंड ही है ये। उसके ऊपर एक और लेयर है। अब ये जो फाउंडेशनल मॉडल है वो एक एंटरप्राइज के डेटा पे नहीं है, चाहे वो LLM हो या SLM हो, तो उसके ऊपर आपको कंटेक्चुअलाइज करना पड़ता है यूजिंग द एंटरप्राइज डेटा। वो एक नेक्स्ट लेयर है, वो उसके ऊपर एक और इस मॉडल ट्रेन हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अनदर मॉडल। और तीसरा लेयर है इंडिविजुअल लेयर, कि जहां पे इंडिविजुअल डेटा को लेके आप
पर्सनलाइज करते हो रिकमेंडेशन को। तो ये 3 लेयर्स हैं, ये 3 लेयर्स हैं, ये 3 लेयर्स हैं कि ये फाउंडेशनल लेयर है, LLM या SLM, एंटरप्राइज या डोमेन स्पेसिफिक लेयर है, और फिर इंडिविजुअल डेटा लेयर है। तो सो आई थिंक दैट इज टू बी अंडरस्टूड। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो इस समय दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत अक्लमंद बेवकूफ़ हैं, कि दे आर ट्राइंग टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स यूजिंग फाउंडेशनल मॉडल्स। जो आप एक थोड़ा कॉमन सेंस प्रैक्टिकली सोचो तो वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है ना, isn't it? कि यार मैं पूरा समुद्र मंथन करूंगा, एक अंग्रेजी में बोलते हैं ना बॉइलिंग द ओशन, बॉइलिंग द ओशन, और मेरे को निकालना है एक चवन्नी, और उसके लिए मैंने कर दिया बॉयल द ओशन की पूरी दुनिया का मैंने डेटा को चर्न कर दिया। और पूरी दुनिया का डेटा को चर्न करने के लिए कितना कंप्यूट लगता है, कितनी एनर्जी लगती है, कितना डेटा सेंटर बनाने पड़ेंगे, कितना पेड़ काटने पड़ेंगे, isn't it? ये सब कुछ जो ये, एंड दिस इज वेरी मच ड्रिवन बाय दिस AGI नॉनसेंस, कि हम ये जो फाउंडेशनल मॉडल विल कीप ऑन मेकिंग इट बिगर एंड बिगर, कि ये फाइनली AGI बन जाए। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इस चक्कर में ये जो मॉडल्स हैं इतने भयंकर हैं, इतने भारी हैं, इतने डेटा सेंटर बनाने पड़ रहे हैं। ये चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है इस चीज़ को, क्योंकि चाइनीज जो मॉडल है वो अलग तरह का है। वो ये नहीं कर रहे कि पूरा में इतना बड़ा बनाना, वो कह रहे हैं अच्छा भैया ये हम प्रॉब्लम स्पेसिफिक मॉडल्स बनाएंगे। सो ये जो जनरल डायरेक्शन है LLM SLM, वो इट इज टू गो फ्रॉम द वेरी बिग टू द वेरी स्पेसिफिक, बट वो सिर्फ दैट इज स्टिल विद इन वन लेयर। ठीक है, इसको AI इज नॉट इक्वल टू फाउंडेशनल मॉडल्स, आज ये तो सीख के जाओ। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू फाउंडेशनल मॉडल, AI इज मल्टीपल लेयर्स। ठीक है। Thank you so much, Nitin, for such an insightful conversation. I think the key takeaways from this session, for me at least, were that how context remains to be the most important Context thing. is king. Is king, and the opportunity that AI presents to us, despite all the negative news about job loss, is that there is a lot that we all can possibly have to. Don't yes. worry about द इनसिक्योरिटी वाली जो जॉब सिक्योरिटी वाली बात थी, उसको आप बिकम अ जॉब क्रिएटर। Thank you so much, and thanks so much for being here, for patiently waiting for this entire session. And if we can have a huge round of applause for Nitin for taking out time and interacting with us today. Thank you. Thank you.